As you well know about myself, I am Mr. Ramesh Kumar Sinha, as English teacher, and I am dealing class 7, the first chapter, last lesson of the afternoon. This very chapter is a literary piece of the writer, and I mean to say about the last lesson of the afternoon is written by D.H. Lawrence, a great literary career. So I am getting the synopsis of the lesson. The present lesson is written by David Herbert Lawrence, and he was a famous English novelist, poet, and belonged to the race of literary critic along with painter. The present work of art is being taught by him refer to the students and their behavior. As a teacher, he was disillusioned by the work. During that very time, the government had made education compulsory, and most of the students had lost their appetite of taking the education. They didn't want to read, and this was restricted to the students to read and go to the institution. He also thought that it is worthless to teach the students. To teach the students is wastage of time. Lastly, he stopped teaching and became author. The first line starts in frustration. Students want and wait for ring of the bell. They are unhappy. They feel that they are captivated in chain, and they are like hounds during the schooling. The writer says that though they are under captivation and seem to be hound, but they don't see the food. The food is the knowledge acquired through the education, and they have lost their sight of their prey and prey of knowledge. He says that it is impossible for him to be a source of inspiration. By the book is worthless. For the books it is abuse, and to read he is completely disgusted with the students. And then a motivation about that his feeling in sarcastic mood for the students, and he is so sentimental about that it is wrong to show the path of education for such students who are not desirous, and he accept that rubbish students they are. They are always earthless, and students were getting their time likely to be the wastage of time and impure because they are victim of evil communication. He is worthless for such students, and he curses them and his self soul and strength. He is far from the visible attitude of students, and he always his teacher's point of view that is worthless. In the last stanza, the poet is going to be pessimistic and cries to God for their good vision, education, knowledge, and lastly, he says, why should he beat his head against wall of each other? He passes the time and waits for the ringing of the bell. इस तरह से मैंने आपको ये बताया इसका जो सिनॉप्सिस था माय डियर स्टूडेंट्स, एंड रिगार्डिंग दैट सिनॉप्सिस I want to tell you something Hindi of that very chapter. The Hindi of this very chapter is
वॉट एवर आई टॉट यू, मैंने जो कुछ भी अभी आपको बताया है वो नोट्स मेरे स्क्रीनशॉट में हैं। आप चाहें तो उस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं उस नोट्स को। स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो में, ले लें वीडियो में आपको। And the Hindi of the last lesson of the afternoon. D.H. Lawrence, he observes the students and says that how students are failure in their mission. When will the bell ring and end this weariness? ये छात्र क्लासेस में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब घंटी बजे और कब उन्हें क्लास से आज़ादी हो। हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लैस एंड स्ट्रैंड अपार्ट। वे लोग ये सोचते हैं कि वो लोग बंधन में हैं, जैसे एक शिकारी कुत्ते को बंधन में बांध करके रखा जाता है। उनकी भी स्थिति एक शिकारी कुत्ते की तरह है एंड वे लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। माई पैक of unruly hounds I cannot start. राइटर ये कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं उनके जब बंधन को देखता हूँ तो मैं घबरा सा जाता हूँ, क्योंकि उन्हें पढ़ने की ख्वाहिश नहीं है। Them again on a query of knowledge they hate to hunt. और उसके बाद उन्हें क्या लेना है ये उन्हें पता ही नहीं है। जिस तरह से एक हाउंड या एक शिकारी कुत्ता भोजन की तलाश होती है, वो कुछ खाना चाहता है, और यहाँ का भोजन जो है बच्चों के लिए वो नॉलेज है, बट द स्टूडेंट्स डोंट वांट टू टेक दैट नॉलेज। वे नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं और नहीं लेने के वजह से देयर इज ए ग्रेट हैट्रेड अगेंस्ट दैट एंड आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मेयर। राइटर ये कहते हैं कि मैं उन्हें सिफारिश करूंगा कि वो पढ़ें और अपने एजुकेशन को आगे करें, लेकिन आई डोंट केयर फॉर दैट। उन्हें इस चीज़ की कोई केयर नहीं है और वो भी नहीं चाहते कि स्टूडेंट उनकी बातों को अंडरस्टूड कर पाएँ। नो लॉन्गर नाउ आई कैन एंड्योर द brunt of the books that lie out of the desk a full more. किताबें जो रखी हुई हैं, जो बंद हैं, उसके नॉलेज को ये लेना नहीं चाह रहे हैं। और राइटर को इन सब चीज़ों को देख कर के बड़ा अजीब सी हालात में राइटर हैं। Several insults pages and a scroll of solemn work that they have offered me. उन्हें यह लगता है राइटर को कि दिस इज द इंसल्ट ऑफ द पेजेज एंड द नॉलेज। जब तक वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तब तक तो एक इंसल्ट है बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी, बिकॉज बीइंग ए टीचर वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति ये है कि आई एम सिक एंड व्हाट ऑन अर्थ द गुड ऑफ इट ऑल, व्हाट गुड टू देम और मी, आई कैन नॉट सी। वो ये कहते हैं कि मेरी भी स्थिति एक बीमार की तरह है और इस पृथ्वी पर जो हो रहा है और मैं जो देख रहा हूँ इसमें अच्छाई कैसे होगी। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो शैल आई टेक माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल एंड काइंडली माई विल टू फ्लेम दैट शैल कंज्यूम द ड्रॉस ऑफ द इंडिफरेंस एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट आई विल नॉट। इस पैराग्राफ में राइटर ये कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को धन्य समझते हैं कि जब तक उनकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र नहीं हो जाती, और उनकी आत्मा की पवित्रता तब होगी जब बच्चों को वो पढ़ाने में सक्षम हो जाएं, बच्चे उनके नॉलेज को ले लें, एंड देन दैट वुड बी द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। लेकिन इस इंडिफरेंस को बच्चे पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं एंड दे गेट द इंसल्ट एंड दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट। आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस, व्हाट डू आई केयर फॉर ऑल दैट आई डू मिस। लास्ट पैराग्राफ में राइटर ये कह रहे हैं कि आई विल नॉट वेस्ट माई सोल
मैं अपनी आत्मा को कोई कष्ट नहीं देना चाहता। जब वो खुद ही नहीं पढ़ना चाहते तो मैं अपनी आत्मा, अपनी शक्ति और अपने नॉलेज को क्यों छात्रों को दूँ? व्हाट डू आई केयर फॉर ऑल दैट दे डू ए मिस। वो प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ देयर्स? इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस। उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और बच्चों में वो इम्प्योरिटी देखते हैं, बच्चे वर्थलेस हैं और उनका कॉन्सर्न जो है वो बहुत गलत है। एंड ही सेज दैट दे आर अनेबल टू सी द चार्म ऑफ द लाइफ विच इज नॉट विजिबल। What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they cannot? राइटर ये कहते हैं कि अगर वो कुछ लिख के दिखाते भी हैं तो अच्छा होता, लेकिन वो तो कुछ लिख के दिखाएंगे नहीं। What is the point to us both? It's all my aunt. सारा प्रयास इनका एक बता रहे हैं कि ये विफल हो जा रहा है, जिसमें इट इज़ ऑल माई ऑन्ट कहने का मतलब हो गया है कि इंडिफरेंस एंड डिसबिलीफ की भावना में है। उन्हें ऐसा लगता है कि छात्रों पर से विश्वास इनका उठ चुका है। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विथ ऑल माई माइट। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो भी वीरता, जो भी इनके अंदर शक्ति है, वो सारी शक्ति से वो विफल हैं। एंड आई डोंट एंड नॉट एंड दे ओंट दे don't, and that's all. I shall keep my strength for myself. They can keep theirs as well as, and we should beat our head against the wall. उनका कहने का ये मतलब है कि इस तरह के सिचुएशंस को देख करके वो काफ़ी घबराए हुए हैं और ये कहते हैं कि वो अपना सर पटक पटक करके क्यों फोड़ना चाहेंगे। ऑफ ईच अदर्स आई शल सीट एंड वेट फॉर द बेल। इस तरह से, जिस तरह से छात्र बैठ करके घंटी का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब घंटी लगे और वो वहाँ से आगे की तरफ चलें। आफ्टर दैट यू गेट द कॉम्प्रीहेंशन। आप कॉम्प्रीहेंशन से पहले मैं राइटर के बारे में बताना चाहूँगा कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 में जन्म लिए और 1930 इनका लाइफ स्पैन रहा। वॉज ए फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट। बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट के रूप में सामने आए। पोएट थे, एसाइस्ट थे, प्ले राइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और साथ ही साथ पेंटर भी थे। ये अपने ज़माने के एक वर्साटाइल राइटर और ये 20th सेंचुरी लिटरेचर के एक अच्छे राइटरों में उभर करके सामने आए। और लास्ट लेसन इन द आफ्टरनून, जिसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई। एट द टाइम ही वॉज टीचिंग इन द क्रॉयडन नियर लंडन। जबकि एक शिक्षण कार्य में क्रॉयडन लंदन में एक इंस्टीट्यूशन में ये शिक्षण कार्य कर रहे थे। सो लॉरेंस बिकेम डिसइल्यूजन्ड विद द वर्क। लेकिन अपने काम से असंतुष्ट हो चुके हैं, बच्चों से असंतुष्ट हैं उस समय। बाय दिस टाइम इन इंग्लैंड द गवर्नमेंट हैड मेड एजुकेशन कंपल्सरी। सरकार ने उस समय अपनी एजुकेशन को कंपल्सरी रखा था, लेकिन कंपल्सरी रखने के बावजूद भी बच्चे का डिज़ायर, बच्चे की जो चाहत थी एजुकेशन से काफ़ी दूर थी। Many people had no desire to learn but were still forced to attend the school. लेकिन फिर भी बच्चों को स्कूल जाना था। He felt the time at school was the futile. इनके लिए इस विद्यालय एक अच्छी जगह नहीं थी बच्चों के लिए, बच्चों का मन नहीं लगता था विद्यालय में। At the time he was trying to teach them was to a complete waste, और पढ़ाई पे समय जो बच्चों का लगता था उसे वे वेस्टेज ऑफ टाइम बच्चे समझते थे। अल्टीमेटली ही अबैंडन्ड द टीचिंग एंड मेड अप हिज माइंड एज ए फुल टाइम अथर। उसके बाद उन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ दिया और वो एक अथर बन करके सामने आए, एक राइटर और एक कविता लिखने वाले एक अथर के रूप में, कवि के रूप में बन के ये सामने आए। सो कॉम्प्रीहेंशन चैप्टर इसको हम लोग डील कर रहे हैं आपका। So read the following lines and answer the questions that follow and take the toll of their insults in punishment. इसका PDF मैंने आपको बना के भेज डाला है, आप
इसके PDF को देख लें। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी मैंने टैग कर दिया है। यू स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन आंसर, वैसे अगर आप क्वेश्चन आंसर समझना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले करके इस क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। द फर्स्ट क्वेश्चन,